السلام علیکم فرینڈس. آج میں اس ناول زندگی تیرے نال جس کو تحریر کیا حرم شاہ نے، اس کی قسط نمبر 3 میں ریڈ کروں گی. تو چلیں بڑھتے ہیں اس قسط کی جانب. لیکن اگر انہیں شک ہو گیا کہ آپ نے مجھے بھیجا ہے تو ملک صاحب تو میری جان لے لیں گے. مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے چودھری صاحب. اعظم جو آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بھورے رنگ کی قمیص کے کف لنگس بند کر رہا تھا، ملازمہ کی بات پر سے آئینے میں سے گھونڈنے لگا. میں تمہیں وہاں جا کر خودکش دھماکہ کرنے کا نہیں کہہ رہا ہوں، بس تمہیں ملکوں کی حویلی میں نوکری کرنی ہے اور آن کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی سے تکلیف نہ پہنچائے. کیا یہ بہت زیادہ کام ہے؟ اعظم نے پرفیوم پکڑ کر خود پر جھڑکتے ہوئے کہا. لیکن چودھری صاحب، اگر ملک صاحب کو پتہ لگ گیا کہ میں ان کی منگ کی جاسوسی کر رہی ہوں تو مجھے ملک صاحب سے بہت ڈر لگتا ہے. اعظم اس کی جانب مڑا. کچھ نہیں ہوگا، گھبراؤ نہیں، بس تم میری آن کا خیال رکھنا اور اسے ان سازشی لوگوں سے بچانا، اور بدلے میں تمہیں مہینے کے 50,000 روپے دوں گا. 50,000 کی ذکر پہ عورت کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. 50,000 کیوں کم ہے؟ نہیں بہت ہے چودھری جی، میں کل سے ہی ملکوں کی حویلی کام پر جانا شروع کر دوں گی. اعظم کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر آن کو ذرا سا بھی نقصان ہوا تو یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا. اعظم کی آنکھوں میں وارننگ دے کر عورت نے تھوک نکلتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا اور وہاں سے چلی گئی. اعظم نے آخری نگاہ خود کو آئینے میں دیکھا اور باہر گاڑیوں کے پاس آ گیا جہاں غلام اس کا انتظار کر رہا تھا. واہ، اتنی زیادہ تیاری، یعنی ہسپتال جانے کا ارادہ ہے جناب کا. اپنے دوست کی بات پہ اعظم مسکرائے بغیر نہ رہ سکا، اور صرف غلام ہی تھا جو اسے اچھی طرح سے سمجھتا تھا. بالکل کافی دن ہو گئے تیری ہونے والی بھابھی کو تنگ کیا، تو سوچا کیوں نہ آج دیدار اشکم ہی کیا جائے. غلام نے ہاں میں سر ہلایا اور گاڑی کا دروازہ کھول دیا. کچھ ہی دیر بعد دونوں ہسپتال کے باہر کھڑے تھے. اعظم گاڑی سے نکلا اور گہری نگاہوں سے ہسپتال کو دیکھنے لگا. پھر اس نے جیب سے رومال نکالا اور اپنے ہاتھ گرد لپٹنے لگا. یہ کیا کر رہے ہو؟ غلام اس کی حرکت پہ حیران ہوتا ہوا پوچھ بیٹھا. مریض بن رہا ہوں، کیونکہ اس کے بغیر تو تیری بھابھی دھکے دے کر ہسپتال سے نکال دے گی. اس سے پہلے کہ غلام اسے روکتا، اعظم نے پوری طاقت سے اپنا ہاتھ گاڑی کے فرنٹ شیشے پہ مار کر اسے توڑ دیا اور فوراً ہی اعظم کے ہاتھ سے خون بہہ کر زمین پہ گرنے لگا. تکلیف کے باوجود اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دے کر غلام نے ٹھنڈی آہ بھری. بالکل پاگل ہو گئے ہو تم اعظم چودھری، ایک دم سنکی نہیں غلام عباس جوگی ہوں میں. کتنا کہہ کر اعظم ہسپتال کی جانب چل دیا تو غلام کو بھی اس کے پیچھے جانا پڑا. اس کے ہسپتال میں داخل تو ملازم نے اسے دیکھ کر گہرا سانس لیا، اسے وارڈ میں بٹھا کر ڈاکٹر کو بلانے چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک نرس کو ڈاکٹر کے پاس کمرے میں آتے دیکھ اعظم کے ماتھے پر بل آئے. ابھی تک تم سب کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ میرے زخم کا علاج ڈاکٹر صاحب کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. جاؤ اور جا کر ڈاکٹر کو بلا کر لاؤ. نرس نے پریشانی سے ڈاکٹر کی جانب دیکھا. ڈاکٹر آج چھٹی پر ہے سر، آپ اپنا علاج ان سے کروا لیں. اعظم کی آنکھوں میں جنون اترتا دیکھ کر غلام پریشان ہو گیا. کیا مطلب چھٹی پر ہے؟ وہ ڈاکٹر صاحب کو شاید اپنی شادی کی تیاری کے لیے جانا تھا، اس لیے وہ آج نہیں آئی. آن کے ارشمان کے ساتھ ہونے والے کے خیال پر اعظم نے اپنے صحیح ہاتھ کی مٹھی بھیج لی. آپ ان سے پٹی کروا لیں سر، کیونکہ ڈاکٹر آن کل ہی ہاسپٹل آئیں گی. اعظم نے اپنی جنون سے بھری انگارہ آنکھیں اٹھا کر نرس کو دیکھا. اس زخم پہ مرہم صرف ڈاکٹر صاحبہ ہی لگائیں گی، ورنہ یہ جوگی یہیں خون بہا بہا کر مر جائے گا. غلام نے منہ کھول کر حیرت سے اعظم کو دیکھا، لیکن وہ اس کی آنکھوں میں چھپے اعظم کو دیکھ سکتا تھا. وہ جو کہہ رہا تھا کر کے دکھانے والا تھا. آن حیرت سے ارشمان کو دیکھ رہی تھی جو کچھ دیر پہلے اس کے کمرے میں آیا تھا. شاپنگ؟ ارشمان نے ہلکا سا سانس ہنس کر حیا میں سر ہلایا. اس دن بھی ہم نہیں جا سکے، لیکن آج ہم دونوں ضرور چلیں گے. لیکن مان بڑی امی کو برا لگے گا، وہ نہیں چاہتی کہ ہم شادی سے پہلے کہیں تنہا جائیں. آن نے اپنی پریشانی بیان کی. ان کی فکر مت کرو، میں نے اما بھی سے کہا ہے کہ ہمیں ایک بزرگ کی شادی سے پہلے سلام کرنے جانا ہے تاکہ ہماری ازواجی زندگی بہت خوشحال گزرے. اما بھی نے امی کو حکم دیا کہ وہ ہمیں ساتھ جانے دیں. آن کا منہ اب حیرت سے کھل چکا تھا. مان آپ نے جھوٹ کا سہارا لینے کے لیے بزرگ کو استعمال کیا، کتنی بری بات ہے. ارشمان ہلکا سا ہنس کر اس کے پاس آیا. فکر مت کرو، بزرگ معاف کر دیں گے، ولی ہوتے وہ اللہ کے بہت رحم ہے ان کے دل میں. ارشمان نے آنکھ دباکر شرارت سے کہا تو آن اپنا چہرہ چھپا گئی. اب بس تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں دیر نہیں کرنی. آن نے اس بات میں سر ہلایا اور کپڑے چینج کرنے چلی گئی. واپس کمرے میں آ کر اس نے اچھی طرح سے چادر پہ بیڈ کے ساتھ ٹیبل پہ پڑا. اس کا موبائل بجنے لگا. ہیلو. ارشمان نے اس کا فون اٹھا کر کان سے لگایا. ہیلو سر، کیا میری ڈاکٹر آن سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ نرس کی گھبرائی آواز پہ ارشمان نے موبائل ان کی جانب بڑھایا. ہیلو. آن نے موبائل کان سے لگاتے ہوئے کہا.
हेलो मैम, वो चौधरी जी यहाँ आए, इनके हाथ पे बहुत ज़्यादा चोट लगी है और वो किसी से अपना इलाज नहीं करवा रहे हैं। कहते हैं आप यहाँ आकर इनको पट्टी करें तो वो यही वो करवाएँगे। नर्स की बात पर आन पकड़ मोबाइल के गिर्द मजबूत हो गई। इसका दिल क्या इसकी जान ले ले, अगर नहीं मान रहा तो इसे हॉस्पिटल से निकाल दो। आन की सख्त लजीब है। शमान ने भी हैरत से इसे देखा। मैम, इनका बहुत खून बह चुका है, पिछले आधे घंटे से इनका खून निकल रहा है। अगर ऐसा रहा तो कुछ ही देर में वो खून की कमी से बाइस बेहोश हो जाएंगे और कहीं इन्हें कुछ हो ना जाए। आन ने अब इस तरफ से शमान की जानिब देखा जो इसे परेशानी से देख रहा था। लेकिन अगर इतनी देर से चोट लगी है तो अब तक तो खून जमकर रुक जाना चाहिए था ना। अब तो आन भी परेशान हो चुकी थी, लेकिन मैंने वो खून रुकने दे तो ना खून रुकता ना, वो तो जख्म को खरेद कर फिर से खून को बहने पर मजबूर कर देते हैं। आन ने गहरा सांस लिया, कोई जवाब दिए बगैर फ़ोन बंद कर दिया। इसके चेहरे पर इज़राब देखकर श्रवण के करीब आया। क्या बात है आन? आन ने अपना सर शर्मिंदगी से झुका लिया। क्या वो इस शख्स की खातिर अपने मान से झूठ बोलने वाली थी? मान एक ज़िद्दी बच्चा है जो मेरे सिवा किसी से इलाज नहीं करवाता। अभी भी इसे चोट लगी है और वो किसी से हैंडल नहीं हो रहा। मान वो अपनी तबीयत ज़्यादा ख़राब कर लेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अशमान ने मुस्कुरा कर इसे देखा, इसका चेहरा अपने हाथों में लिया। बस इतनी सी बात, तुम जाओ और जाकर अपना फ़र्ज़ पूरा करो। हम शॉपिंग फिर कभी पे चले जाएंगे। लेकिन मान देखो आन, मैं जानता हूँ तुम डॉक्टर इसलिए बनी क्योंकि तुम्हें इस काम से प्यार है, लोगों के काम आना चाहती हो तुम, और मुझे हर चीज़ से प्यार है जिससे मेरी आन को प्यार है। अशमान की मोहब्बत पर आन की पलकें भीग गई। क्या वो इस घटिया शख्स की खातिर इस बेलौस मोहब्बत को दगा देने जा रही थी? तुम जाओ आन, हम शॉपिंग फिर कभी चले जाएंगे, इतनी बड़ी बात नहीं है। आन ने अपना सर शर्मिंदगी से झुका लिया और इस बात में सर हिलाकर बाहर आकर गाड़ी में बैठ गई। आंखें शरमान को धक्का देने के ख्याल से मुसलसल बह रही थी, लेकिन वो क्या करती, वो अपनी वजह से किसी को मरते हुए नहीं देख सकती थी। हॉस्पिटल पहुंचकर वो सीधा इस वार्ड में आ गई जहाँ आजम को रखा गया था। वार्ड में दाखिल होते ही से जब इसने आजम के कदमों में फैला खून और उसके खून से लथपथ हुए हाथ को देखा तो नर्स को ड्रेसिंग का सामान लाने के कहा कहकर परेशानी से इसकी जानिब बढ़ गई। आजम के हाथ की ड्रेसिंग करने के बाद आन ने इसकी जानिब देखा जो खून की कमी बस बेहोश होने वाला था। सिस्टर प्लस ए ब्लड ग्रुप का बंदोबस्त करें, हमें इन्हें खून लगाना होगा। नर्स ने हाँ में सर हिलाया। तकरीबन आधे घंटे तक वक्त के बाद खून की बोतल लेकर वार्ड में दाखिल हुई। अज़म को बेड पर लिटाने के बाद आन ने इसे ड्रिप की सूरत में खून लगाना शुरू किया। मेरी तकलीफ नहीं बर्दाश्त हुई ना, इसके बावजूद कहती कि मुझसे नफरत है तुम्हें मुझसे नफरत नहीं आन, बल्कि देखना एक दिन इसे भूलकर तुम मुझे चाहोगी इतना जितना मैं तुम्हें चाहता हूँ। अज़म मुश्किल अपनी बंद होती आंखें खोलकर कह रहा था, जबकि अपना काम ख़त्म करने के बाद अब आन इससे नफरत से इसे देख रही थी। मुझे तुमसे सच में नफरत नहीं थी, लेकिन अब तुमसे नफरत हो रही है। अज़म के माथे पर बल आते देखकर आन अपने सीने पर बांध गई। ये सब करके क्या साबित करना चाहते हो कि तुम्हें बहुत मोहब्बत है मुझसे? हो, जो इंसान खुद से मोहब्बत नहीं करता वो किसी को क्या चाहेगा? अज़म ने हैरत से आन को देखा। ये खून फालतू में भागा, तुम्हें क्या लगता है खुद को रांझा या जोगी साबित किया है तुमने? आन ने नफरत से अज़म को देखा। ये जो खून की बोतल मैंने तुम्हें लगाई है ना, ये इससे एक इंसान की जान बच सकती थी, लेकिन तुमने इसकी कदर जाने बगैर इसे फालतू में ज़ाया किया। आन ज़रा सा अज़म के करीब हुई जो हैरत से आंखें खोले से देख रहा था। इस खून और तंदुरुस्ती की कदर तुम्हें तब आती जब तुम्हारा कोई प्यारा यहाँ लेटा जान की बाजी लगा रहा होता और तुम इसके लिए खून की एक एक बूंद ढूंढने के लिए खान छान रहे होते। अज़म इसकी आंखों में अपने लिए वाज़ेह नफरत देख सकता था। अगर अपने इस हट्टे कट्टे तन रात जिस्म से खून बहाने का इतना ही शौक है तो अपना खून इन बच्चों को दो जो हर रोज़ खून की बूंद बूंद को तरसते ज़िंदगी से मौत से लड़ रहे हैं, जिन्हें हर कुदरत तुम्हारी जितनी मेहमान होकर इन्हें एक तंदुरुस्ती जिस्म न दे सकी। अपना यह खून इनके लिए भाव ताकि तुम्हारा तंदुरुस्त पैदा होने का कर्ज अदा हो सके और तुम अपनी सेहत के लिए खुदा के सामने शुक्रगुजार हो सको। आन ने गुस्से से कहा और वहाँ से जाने लगी, लेकिन फिर एक ख्याल के तहत इसने पलट कर अज़म को देखा जो कि हक्का बक्का से देख रहा था। आज के बाद अगर तुम यहाँ मर भी गए ना तो मैं भी तुम्हें नहीं बचाऊंगी, क्योंकि तुम जैसे फालतू इंसान पर अपना हुनर और वक्त ज़ाया करने की बजाय मैं इसकी मदद करना पसंद करूंगी जो वाकई इसका हकदार हो। इतना कहकर आन वहाँ से चली गई और जब अपने जिस्म में कतरा कतरा जाते इस खून को देखता इसकी बातों के बारे में सोचने लगा। आन के हॉस्पिटल में जाने के बाद अर्शमान ने डेरे पे जाकर अपना काम निपटाने का सोचा। इस मकसद के लिए इसने अपनी गाड़ी पकड़ी और उसे चलाकर डेरे पे चलाने लगा। अभी वो गाड़ी कुछ दूर ही गया था जब इसे एहसास हुआ कि गाड़ी का टायर पंचर हो चुका है। इस एहसास के तहत अर्शमान गाड़ी से बाहर आया, गहरा सांस लेकर टायर को देखने लगा जो बिल्कुल फ्लैट हो चुका था। वो गाड़ी की डिग्गी से एक्स्ट्रा टायर निकालने के लिए गया, लेकिन ऐसा लगा कि गाड़ी की पिछली सीट के पास कोई है। इसने फौरन पिछली सीट का दरवाज़ा खोला तो ड्राइविंग सीट के पीछे छिपी लीजा को देखा। इसके माथे पर बल आ गए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अर्शमान इंग्लिश में कर रहा है तो लीजा ने हल्का सा चेहरा इसकी जानिब मोड़ा और मुस्कुराकर दोनों हाथों से अपने कान पकड़ लिए। मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ, इसलिए अर्शमान ने गुस्से से अपने दांत खिचलाए। बाहर आओ फौरन।
शमान के हुक्म देते ही लिजा गाड़ी से बाहर आकर इसके सामने खड़ी हो गई। इस वक्त इसने जीन्स पर सफ़ेद फ्रॉक पहनी थी जो घुटनों से ऊपर थी और घुटनों और कोहनियों तक बाजू होने की वजह से लिजा का सारा वजह छुपा हुआ था। बालों की हमेशा की तरह पोनी टील बनाए और हल्की से मेकअप में वो दरख्तों की छाँव में खड़ी बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। लेकिन अशमान ने तो एक नज़र भर भी इसे नहीं देखा था। तुम यहाँ क्यों आई हो, वो भी यूँ छुप कर। अशमान को जो सख्ती लिजा को बुरी लगती थी आज वही इसके दिल में उतर रही थी। अगर घर से तुम बात करना चाहती तो तुम डांट कर हम वापस कमरे में भेज देते, लेकिन यहाँ तो मुझे कहीं नहीं भेज सकते। लिजा ने मुस्कुराकर गिर्द देखते हुए कहा, जहाँ दूर दूर तक से खेत दिखाई दे रहे थे, यानी टायर पंचर। अशमान ने बात को समझते लिजा की जानिब गुस्से से देखा तो इसने फ़ौरन अपने कान पकड़ लिए। डबल सॉरी बैड बॉय, लेकिन मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी थी ना। अशमान ने सख्ती से इसे देखा, तुम तमीज़ से बात करो। ओके मिस्टर बैड बॉय। लिजा ने पलके छिपा देखा तो अशमान ने गहरा सांस लिया और डिग्गी में से टायर निकाल कर गाड़ी का टायर चेंज करने लगा। अरे ये खुद क्यों कर रहे हो, किसी मैकेनिक को ढूंढ लेते हैं ना। लिजा की बात पर अशमान ने से ऐसे देखा जैसे इसे बड़ा पागल कोई ना हो। देख रही हो हम कहाँ फंसे हैं, यहाँ से 1 घंटा पैदल चलने के बाद हमें मैकेनिक मिलेगा। मेरी तो खैर है, लेकिन तुम वहाँ तक जाते जाते मर जाओगी। लिजा ने मुंह बसोर कर इसे देखा, अब इतनी भी कमज़ोर नहीं, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, अभी देखो तुम। लिजा ने इतना कहा गाड़ी के पास बड़ा टायर उठाना चाहा, लेकिन वो टायर तो उठा ना पाई, अलबत्ता खुद ज़मीन पे गिर गई तो न चाहते हुए अशमान को हल्का सा हंस दिया। इसकी मुस्कुराहट की खूबसूरती में खोई सी वो इसे देखी जा रही थी। स्माइल तो इसकी और भी कातलाना है यार, लिजा ने हल्के से कहा। तभी अशमान इसके पास आया, इसे कोनी से पकड़ कर खड़ा किया और ख़ुद गाड़ी का टायर बदलने लगा। वैसे तुम्हारे हंसने का क्या मतलब समझूं कि तुमने मुझे इस दिन के लिए माफ़ कर दिया। इतनी आसानी से माफ़ करना अशमान मलिक की फितरत नहीं। अशमान जो टायर को खोल रहा था इस पर ध्यान दिए बगैर बोला, तो क्या करना पड़ेगा मुझे माफ़ी के लिए। अशमान ने गहरी नज़र से देखा जो बहुत उम्मीद से ये बात पूछ रही थी। ज़्यादा कुछ नहीं, बस घर में सबकी इज्जत करो, अपने में थोड़ा हया पैदा करो, आन को एक बहन का प्यार दे दो जिसे इसकी हमेशा ख्वाहिश रही है। आखिरी बात कहते हुए अशमान के चेहरे पर ख्वाब सी कैफियत थी जिसे वो आन की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता था। ओके डर में ही सब करूँगी, लेकिन बदले में तुम भी मेरे साथ एटीट्यूड से पेश आना बंद करोगे, ओके। लीजा ने अपना हाथ अशमान की जानिब बढ़ाते हुए पूछा। डन। अशमान ने इसका हाथ पकड़े बगैर का और गाड़ी का टायर बदलने लगा। लीजा भी गाड़ी के बोनट पर बैठकर मुस्कुराते हुए इसे देखने लगी। कुछ देर बाद गर्मी की शिद्दत से अशमान की शर्ट पसीने से बह गई तो उसने शर्ट उतार कर गाड़ी पर रखी और अपना ध्यान टायर बदलने लगा। जबकि इसके तवाना जिस्म को देखकर लीजा का मुंह वॉश शेप में गोल हुआ। मौका देखकर इसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और चुपके से अपनी एक सेल्फी अशमान के साथ बना ली जो बाद में वो इंस्टाग्राम पर अपलोड करने का इरादा रखती थी। चलो गाड़ी में बैठो। टायर चेंज करके अशमान ने शर्ट से दोबारा पहनते हुए कहा, मत पहनो ना प्लीज़। कुछ कहा तुमने? लीजा की हल्की सी सरगोशी अशमान को समझ ना आई तो पूछ बैठा, कुछ नहीं। लीजा ने फ़ौरन इसे कहा तो अशमान ने गहरा सांस लिया। गाड़ी में बैठो। अशमान इसे हुक्म देता हुआ ड्राइविंग सीट पर बैठ गया तो लीजा भी खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। लेकिन गाड़ी को वापस हवेली की जानिब जाता देखकर लीजा ने मुंह पकड़ लिया। वापस क्यों वहाँ जाते हैं, वापसी क्यों वहाँ जाते हैं ना जहाँ तुम जा रहे थे। अशमान ने सख्ती से कहा, लगता है तुम नहीं चाहती कि तुमसे नरमी से पेश आया जाए, चुपचाप वापस घर चलो। लीजा ने मुँह पर जोर कैसे कहा, बैड बॉय। लीजा ने हल्की सी सरगोशी की, लेकिन फिर अशमान की तवज्जो से गाड़ी चलाता देखकर मुस्कुरा दी। बट हैंडसम बैड बॉय। लीजा ने मुस्कुरा कर अशमान को देखते हुए कहा जो आन के बारे में सोचते हुए खुद भी मुस्कुरा रहा था। कल कुछ भी हो जाता वो हर हाल में आन को शॉपिंग पे ले जाने का इरादा रखता था, ये जाने बगैर कि जिस मोहब्बत को पाने की चाह में वो इतना बेचैन हो रहा है, इस मोहब्बत को बहुत जल्द किसी की नज़र लगने वाली थी। कनिज बेचैनी से अपने कमरे में ठहर रही थी। आंसू पलकों पर ठहर कर इसकी हसीन आंखों को मस्जिद का तलाना बना रहे थे। साईं जी मेरे पास से गुजरा, मुझे देखा तक नहीं। कनिज ने बेचैनी से कहा, चारपाई पे बैठकर रोने लगी। क्या वो बस मुझे काम करवाने के लिए यहाँ लाए हैं? कनिज ने अफसोस से अपने हाथों को देखते हुए कहा, जिनकी मेहंदी अब मान पड़ चुकी थी। हो सकता है उन्होंने मुझे पहचाना ना, उन्होंने मुझे भला कौन सा देखा था। कनिज ने सोचते हुए कहा तो उसे याद है कि सुल्तान के सामने तो वो घूंघट में रही थी। हाँ हो सकता है वो भूल गए, उनकी शादी हुई थी मुझसे। कनिज ने मासूमियत से सोचा, तो फिर अब मैं क्या करूँ, क्या याद कराऊँ उनको? कनिज ने बेचैनी से अपने हाथ मसले। हाँ, इन्हें याद करवाती हूँ, इनसे पूछ भी लूँगी कि आप मुझे काम करने लाए हैं या अगर उन्होंने हुक्म दिया तो मैं सब काम कर लिया करूँगी, चाहे कितना ही थक जाऊँ। कनीज़ ने सोचा कमरे से बाहर जाने लगी। इतने दिनों से यहाँ काम करते हुए तो जान गई थी कि सुल्तान का कमरा कौन-सा है। वो रात भी कनीज़ ने रोकर गुज़ारी थी जब इसे ये इल्म हुआ था कि वो खुद तो एक आलीशान कमरे में रहता है और उसे एक छोटे से कमरे में रखा था। कनीज़ को लगा उसे अपने काबिल नहीं समझता। इन्हीं सवालों के जवाब पाने के लिए कनीज़ ने हिम्मत की और अच्छी तरह से दुपट्टा लेती चुपके से घबराते हुए सुल्तान के कमरे की जानिब चल दी।
कमरे के बाहर पहुंचे। कितनी देर उस तरह के आलम में अपनी नाक को रसीले पे हिम्मत करके इसने दरवाज़ा खुला, कमरे में दाखिल हो गई। सामने इसकी नज़र सुल्तान पर पड़ी, जो गहरी बिस्तर पर लेटा गहरी नींद सो रहा था। कनीज ने हैरत से कमरे को देखा, जो इतनी गर्मी में भी काफ़ी ठंडा था। इसकी ठंडक का राज भी जल्दी खुल गया जब इसकी नज़र दीवार से लगी मशीन पर गई, जिसमें से बहुत ठंडी हवा आ रही थी। कनीज हल्के हल्के कदम उठाते हुए सुल्तान के पास गई, हसरत से देखने लगी, जो इस नाजुक जान से यूं जानवरों की तरह काम करवा कर खुद तो कितने सुकून से सो रहा था। कनीज की पलकें खुद ब खुद नम हो गई। आप ज़रा अच्छे नहीं है, बस शहरी बाबू गुड्डे की तरह प्यारे हो, लेकिन अच्छे नहीं साईं जी, बिल्कुल भी नहीं अच्छे। कनीज सुल्तान के बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठी इसे सोता हुआ देखकर कहने लगी। वो सोते हुए इस कदर दिलकश लग रहा था कि कनीज चाहकर भी इस पर गुस्सा नहीं कर पा रही थी, लेकिन इसे भी तो कनीज की परवाह नहीं थी। कोई अपनी बीबी कनीज ने सहम कर गहरी नींद में डूबे सुल्तान को देखा। वो बीवी का लफ्ज़ ज़बान पर लाकर गलती से भी इसकी को बदली नहीं करना चाहती थी। कोई अपनी मैट से इतना काम करवाता है क्या? बहुत जालिम निकला मेरा शहरी बाबू गुड्डा। कनीज से मुँह बसोर कर इस आंसुओं से तर आंखों से देखा। वो ज़रा सा इसके करीब होकर हल्का सा इसके माथे पर बालों को छुआ। आपकी कनीज आपसे बहुत नाराज़ है साईं जी, अब वो आपकी खिदमत नहीं करेगी। कनीज ने शिकवा किया, उठकर जाने लगी, लेकिन अचानक ही सुल्तान ने नींद में इसका हाथ थामकर अपने चेहरे के नीचे रख लिया और करवट बदलकर सो गया। सुल्तान के हाथ के साथ साथ इसकी दाढ़ी का लम्स अपने नाजुक हाथ पर महसूस कर कर कनीज की नाजुक जान कांप कर रह गई। इसने अपना हाथ छुड़वाना चाहा, लेकिन सुल्तान की पकड़ इसके नाजुक हाथ पर मजीद मजबूत हो गई। कनीज ने घबराते हुए अपनी कोशिश अदा कर दी, तो नींद के मजे लेते सुल्तान को उसकी हरकत शायद पसंद नहीं आई, इसलिए इसने सीधे होकर इसके हाथ को जोर से अपनी जानिब खींचा और कनीज अपना तवाज़ुन खोती इस पर गिर गई। सुल्तान ने अपनी आंखें खोलकर से देखा तो नाइट बल्ब और चांदनी रोशनी की रात की चांदनी रोशनी में इसका सामना दोसियां आंखों से हुआ, जो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें थी और उसकी बाहों में मौजूद वो लड़की इस दुनिया की सबसे हसीन लड़की थी। सुल्तान को लगा वो ख्वाब देख रहा है और लड़की एक शराबती असलियत में, भला कोई इस कदर खूबसूरत कैसे हो सकता है? तुम एक परी हो ना? सुल्तान की गंभीर नींद से गुजर आवाज़ पर कनीज का तब से इनका सांस बहाल हुआ। नहीं, मैं तो नूरी हूँ। कनीज खुद नहीं जानती थी कि वो कनीज की जगह नूरी क्यों बोल गई। नूरी तो बस अपने माँ बाप के लिए थी, जो इसे प्यार से नूरी कहकर बुलाते थे। हाँ, तो तुम सच में नूर हो। कोई इंसान इतना खूबसूरत कैसे भला हो सकता है भला? सुल्तान की बात पर पहले से खूबसूरत आंखें फैलकर मज़ीद खूबसूरत हो गई और सुल्तान की बस हुई थी इसकी खामोश में। ये लड़की बस एक ख्वाब थी, एक शराब थी, और ख्वाब में तो इंसान कुछ भी कर सकता है ना। सुल्तान गैर दिमागी में सोचा तो इसकी नज़र कटावदार बातें लोगों पर ठहर गई। मुझे मेरी गुस्ताखी पे माफ़ कर देना उस हसीन सी नूरी, लेकिन इतना हसीन ख्वाब मुझे फिर कभी नहीं आएगा। इससे पहले ये कनीज की बात समझती सुल्तान ने अपना हाथ इसके बालों में फंसाया, खुद इसे करीब करते हुए इसके नाजुक लबों को अपनी पर शिद्दत गिरफ्त में ले लिया। सुल्तान की इस बेबाक हरकत पर कनीज की जान हलक में अटक गई। इसने खुद को छुड़वाना चाहा तो सुल्तान के माथे पर बल आया और कनीज के नरम लबों को मजीद शिद्दत से दो चार होना पड़ा। वो मासूम बस इसकी मजबूत गिरफ्त में बेहाल होने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। आखिर वो सुल्तान कनीज की, क्योंकि सुनता कनीज इसकी मलकियत जो थी। सुल्तान ने इसे यूं ही अपनी आगोश में भरे करवट बदली और इसे खुद के नीचे करके इस पर हावी हो गया, जबकि वो बेचारी तो ना ही खुद पर हुए हमले से डर समझ पा रही थी, ना ही इसकी शिद्दतों का मकसद समझ रही थी। सुल्तान ने इसके होठों से होठ हटाए तो वो गहरे सांस भरने लगा, लेकिन सुल्तान फिर से भरपूर शिद्दत से इसके होठों पर झुक गया और अपने सीने पर मजम्मत करते हाथों को थाम कर बैट से लगा लिया। इसकी बढ़ती शिद्दतों को पर कनीज की जान निकलने के दर पर हो गई थी, लेकिन वो बेबस इसकी आगोश में दबी कुछ खा ही नहीं पा रही थी। सुल्तान के होठ सरकते हुए अब इसकी गर्दन तक जा चुके थे। नहीं साईं जी, मैं मर जाऊंगी, मत करें ऐसे। इससे पहले वो मजीद कोई भी गुस्ताखी करता, इस परी की नम और सहमी आवाज़ इसके कानों में पड़ी। सुल्तान ने बोझल ख्वाब नाक आंखों से इस हसीन चेहरे को देखा। मुझसे नाराज़ मत होना हसीन परी, और फिर से मेरे ख्वाब में आ जाना। तुम्हें खुदा का वास्ता हर रात मेरे ख्वाब में आ जाना। इतना कहकर सुल्तान ने इसे अपनी आगोश में भरा और अपना चेहरा इसकी गर्दन पर छिपाकर सुकून की नींद सो गया, जबकि इसकी इस गुर्बत पर थर थर काँपती कनीज इसकी हरकतों के बारे में सोचती खफत से गुलाबी हो रही थी। आप बुरे हैं ही नहीं बेहया भी हैं। शहरी बाबू गुड्डे, जाने क्या हो गया था आपको? ऐसा फिर कभी मत करना। मेरा सांस रुक गया था, आप रुकते रही तो मैं तो मर जाती। क्या घनी और सब वो सब याद करके फिर से पाँव के नाखून तक शुरू हो गई। फिर जैसे तैसे इसने खुद को उसकी आंखों से निकाला और खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। अपने कमरे में वापस आने के बाद पूरी रात इसने सुल्तान की बेबाकियों पर हया से पलकें झपकाते और उसकी शिद्दतों पर कांपते गुजारी थी। वो शिद्दतें जिनको वो मासूम समझने से बिल्कुल कासी थी, इसलिए पूरी रात में कितनी ही मर्तबा से बेशरम के लक़ब से नवाज चुकी थी। आँख खुलने पर सुल्तान गहरा सांस लेता हुआ उठ बैठा। इसे याद है कि कल फरीन बेगम से की बातों के बाद वो इस कदर परेशान था कि रात बहुत कोशिश के बाद इसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो काफ़ी हैवी डोज वाली नींद की गोलियां खाकर सो गया था, जिसके नतीजे में इसका सर इस वक्त बुरी तरह से भारी हो रहा था।
सुल्तान को रात में देखा वो ख्वाब याद आया तो चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी आ गई। इसने आज तक इतनी हसीन हसीन ख्वाब नहीं देखा था। इसका दिल कर रहा था कि वो फिर से सो जाए और वो हसीन परी एक बार फिर इसके ख्वाब में आ जाए। न जाने वो कैसा ख्वाब था कि सुल्तान अभी भी अपने होठों पे वो नरम फूलों सा एहसास महसूस कर सकता था। इसे अपने वजह से अभी भी इस परी की खुशबू आ रही थी, जैसे कि वो इसके अंदर समा गई हो। नूरी, सुल्तान ने ज़हर लफ्ज़ का नाम दोहराया और मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ। फ्रेश होने के बाद तैयार होने तक इसके ज़हन में इस लड़की का एहसास रहा। तो सुल्तान ने गहरा सांस लिया, खुद को आईने में देखा। बस भी कर दो, इसके बारे में सोचना बस एक हसीन ख्वाब थी जो को कभी सच नहीं हो सकता। फिर कुछ सोच कर सुल्तान के चेहरे पे एक साया सा दौड़ गया। अगर वो सच भी होती तो फिर भी मेरा मुकद्दर नहीं हो सकती थी। सुल्तान ने अनाबिया को याद करते हुए अफसोस से कहा और इस लड़की पर ध्यान हटाते हुए तैयार होने लगा। लेकिन इसे जल्दी मालूम हो गया इस लड़की को दिमाग से निकालना इतना आसान नहीं था। वो सुल्तान की हवास में बहुत बुरी तरह से हावी हो चुकी थी। सुल्तान फरीन बेगम की आवाज़ पे सुल्तान ने पलट कर नहीं देखा, लेकिन इनके साथ अनाबिया को देखकर सुल्तान की सारी परेशानी, सारा इसराब इस पर से हावी हो गया। जी अम्मी, फरीन बेगम इसके पास है। उसका चेहरा हाथों में थाम कर होठ इसके माथे पे रखे सुल्तान ने बेसाख्ता झुककर इनके लिए आसानी पैदा की। अभी तक नाराज़ हो मुझसे? सुल्तान ने हैरत से इनकी जानिब देखा। आपसे नाराज़ हो सकता हूँ मैं? आपने ऐसा सोचा भी कैसे? सुल्तान की मोहब्बत फरीन बेगम का मज़ीद मान बढ़ा गई। मुझे माफ़ कर देना बेटा, मुझे माफ़ कर दो बेटा। मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। तुम जब चाहोगे तभी तुम दोनों की शादी होगी। मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम कभी भी अनाबिया को धोखा देकर मेरा मान नहीं तोड़ोगे। फरीन बेगम की बात पर सुल्तान ने अपना सर झुका लिया। खैर, मैं तुम्हें यहाँ की ये कहने आई थी कि अनाबिया ने अभी तक अर्शमन की शादी की तैयारी नहीं की, तो तुम इसे अपने साथ शहर ले जाओ, शॉपिंग करा दो। सुल्तान फरीन के हुक्म पर परेशान हुआ। लेकिन अम्मी, हम दोनों अकेले तो क्या हुआ? अनाबिया तुम्हारी मंगेतर है बेटा, कोई पराई तो नहीं है। चलो शाबाश, इसे लेकर जाओ। सुल्तान फरीन बेगम को बताना चाहता था कि मंगेतर ही सही, लेकिन अनाबिया फिर भी इसके लिए गैर महरम थी। लेकिन वो इसे अपनी माँ की हुक्म अदली नहीं करना चाहता था, इसलिए अपना सर फर्मा बरदारी से झुका गया। जो हुक्म अम्मी। सुल्तान इतना कहकर कमरे से बाहर निकल गया और फरीन बेगम ने मुस्कुराते हुए अनाबिया की जानिब देखा। सुल्तान को अपनी मुट्ठी में कैद कर लो अनाबिया, ताकि किसी का हो न तो दूर इसके जहन में भी किसी का ख्याल ना आए। समझ गई ना? अनाबिया ने हाँ में सर हिलाया, तैयार होने चली गई। सुल्तान के साथ शॉपिंग पे जाने के लिए इसे बहुत ज़्यादा हसीन देखना था। काश वो जानती कि एक हसीन परी पहले सुल्तान के ख्वाब में आकर इसके दिल में हुक्मरानी का पहला झंडा गाड़ चुकी थी। तुम दोनों कहीं जा रहे हो क्या? फरीन बेगम ने गहरी नज़र से आन को देखते हुए पूछा, जो एक चादर में लिपटी अर्शमान के पीछे खड़ी थी। जी अम्मी, वो याद है ना, मैंने आपको बताया था कि मुझे और आन को एक बुजुर्ग को सलाम करने जाना है, बस वहीं जा रहे थे। फरीन बेगम की नज़र अभी भी आन पर थी, जो सर झुकाए बैठी थी। लेकिन बेटा, तुम दोनों यूँ अकेले कैसे जा सकते हो? लोग क्या कहेंगे? चंद दिनों बाद है में शादी है इनकी और ये दोनों अकेले घूम रहे हैं। तुम्हें मुल्कों के मान का ज़रा ख्याल करना चाहिए ना। सही कह रही हूँ ना? ना मैं अम्मा भी। फरीन की बात पे अम्मा भी ने अपना सर झटका। अभी कुछ देर पहले ही तो उन्होंने फरीन बेगम को सुल्तान और नाबिया को हंसी खुशी भेजते देखा था। अब जब बात आन की थी तो इन्हें उसूल याद आने लग गए थे। आप दोनों कहीं जा रहे हैं क्या? प्लीज़ मैं भी चलूँ? इससे पहले कि अम्मा भी कुछ कहती, लीज़ा की आवाज़ से सबके कानों में पड़ी, जो चहकती हुई वहाँ से दाखिल हुई थी। लीज़ा बेटा, वो दोनों अपने प्रोग्राम पर जा रहे हैं, आप मेरे साथ चले ना, जहाँ भी जाना है। शाहिद साहब के समझाने पर लीज़ा का मुँह बन गया। मैं कौन सा इन दोनों को डिस्टर्ब करूँगी डैड, वैसे भी आपके साथ तो कनाडा भी जाया करती थी, अब मेरा अपने कज़न के साथ जाने का दिल कर रहा है। लीज़ा की बात पर अंशुमन की बीजी में मुठ्ठियाँ देख सकती थी। लेकिन लीज़ा प्लीज़ डैड, आप ही तो कहते हैं मैं अब इनसे घुलूँ मिलूँ, अब मैं ऐसा कर रही हूँ तो आप ही रोक रहे हैं। लीज़ा मुँह बनाकर अम्मा के पास बैठ के तो शाहिद साहब ने गहरा सांस लिया। शायद ही क्या शायद क्या कह रही है बच्ची? अम्मा बी के पूछने पर शायद ने इन्हें हर बात बता दी। ठीक कह रही है, जब से वो आई है इसे कोई घुमाने लेकर नहीं गया है। अर्शमा, तुम लीजा को अपने साथ के ले जाओ, ऐसे वो बुजुर्गों के सलाम कर लेगी और तुम दोनों के अकेले जाने पे जो एतराज़ है वो भी ख़त्म हो जाएगा। आखिरी बात में अम्मा ने फरीन बेगम को जताती नज़रों से देखते हुए कहा। अर्शमा ने ना चाहते हुए भी इस बात में सर हिलाया, अपने गुस्से को दबाता हुआ वहाँ से चला गया। शाहिद ने लीजा को उनके साथ जाने का कहा तो लीजा चहकते हुए उनके पास आई, उसका हाथ पकड़कर बाहर की जानिब चल दी। गाड़ी के पास आकर लीजा ने पिछली सीट का दरवाज़ा खोला तो आन भी खुश खामोशी से इसके साथ बैठ गई। ओह गॉड, मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ, हम कहाँ जा रहे हैं? लीजा ने ज़रा आगे होकर शमान से पूछा, लेकिन शमान तो शीशे में आन को घूरने में मसरूफ था, जो इसका गुस्सा महसूस करते हुए घबरा कर अपनी चादर ठीक कर रही थी। आगे आकर बैठो। शमान उर्दू में बोलने से ज़्यादा कराया तो आन ने परेशानी से शीशे में इसकी अंगारा होती आंखों को देखा। मानो अकेली कैसी बैठेगी पीछे। प्लीज़ आप ऐसे ही चले। इस बात पर शमान की आंखों को सुलगता हुआ देखकर आन मजीद घबरा गई।
वो बच्ची नहीं है जो अकेले डर जाएगी। आन मैं कह रहा हूँ मेरी बात मानो वरना अच्छा नहीं होगा। अशमान की वार्निंग पर आन ने घबरा कर लीजा को देखा। मैं आपको मना लूंगी। आन ने आहिस्ता से कहा तो अशमान की पकड़ स्ट्रिंग टेबल वेल पर इंतहाई मजबूत हो गए। वो गुस्से से ड्राइव करने लगा, जबकि नजरें फिर भी बार बार भटक भटक कर शीशे पे जा रही थी जहाँ वो आन को हंसते हुए लीजा से बातें करते देख सकता था। लाहौर तक का सफर काफी लंबा था, लेकिन जब मॉल पहुंचकर अशमान ने गाड़ी पार्किंग में रोकी तो लीजा हैरान होकर दोनों को देखने लगी। मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं? मैं तो तैयार होकर आती, थोड़ा मेकअप ही कर लेती। लीजा ने आईने में देखा, अपने बाल दुरुस्त करते हुए कहा, कोई फायदा नहीं लगना, फिर भी तुमने चुड़ैल ही था। अशमा ने दांत खिंचाकर उर्दू में कहा तो आन हैरत से देखने लगी। मान क्या कहा इसने? लीजा ने आन से पूछा तो वो गड़बड़ाकर अशमान को देखने लगी। उन्होंने कहा तुम्हें मेकअप की जरूरत नहीं है, तुम ऐसी अच्छी लगती हो। आन की बात पर अशमान ने गहरा सांस लिया। हाँ मेकअप की नहीं बल्कि प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत है। अशमान आहिस्ता से कह के वहाँ से चला गया तो आन घबरा कर इसके पीछे चल दी, जबकि लीजा वहीं खड़ी मुस्कुराते हुए खुद को आईने में देख रही थी। जानती थी कि वो बहुत जल्दी तुम भी हर आदमी की तरह मेरी तारीफ करने पर मजबूर हो जाओगे, यानी अब मेरा काम आसान हो जाएगा। लीजा ने डरा कर खुद को देखते हुए कहा, फिर भाग कर अशमान और अन के पीछे चली आई। माँ ने तो गुस्से में क्यों है? वो बेचारी तो हमारी उर्दू भी की बातें समझ नहीं सकती और साथ होना हो क्या फ़र्क पड़ता है। वो तीनों लिफ्ट में खड़े थे जब आन ने आहिस्ता से अशमान का गुस्सा कम करने के लिए कहा, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता होगा लेकिन मुझे पड़ता है। मैं ये ख़ास लम्हे तुम्हारे साथ खुलकर जीना चाहता हूँ आन, क्योंकि ये लम्हे फिर लौट कर हमारी ज़िंदगी में नहीं आएंगे। लेकिन इसी को कबाब में हड्डी बनने का कुछ ज़्यादा ही शौक था। अशमान ने दांत पीस कर लीजा को देखते हुए कहा, जो मुस्कुरा कर अपना मोबाइल देख रही थी। अच्छा प्लीज़ अब गुस्सा छोड़े ना, जो होना था हो गया, अब हम अभी भी तो खास खुशी खुशी इस लम्हे को जी सकते हैं ना। आन ने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन अशमान का सर इनकार में हिलता देखकर वो ठंडी आह भर कर रह गई। प्लीज़ अमान मेरी खातिर, प्लीज़ अमान मेरी खातिर। आन ने आस्ते से अशमान को हाथ पकड़कर कहा तो शमान ने एक नज़र अपने हाथों को देखा, फिर दूसरी नज़र आन की मासूम चेहरे पर डालकर मुस्कुरा दिया। तुम जानती हो कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हो सकता। इसकी बात पर आन के चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट आई। जानती हूँ यार, प्लीज़ इंग्लिश में बात कर लो ना, मुझे अजीब सा लग रहा है। लीजा ने मुँह मुसर कर कहा तो आन ने फ़ौरन अशमान का हाथ छोड़ दिया। जो बातें हम कर रहे हैं वो तुम्हारे मकसद की नहीं है, इसलिए रहने दो। अशमान ने इंग्लिश में लीजा से कहा और लिफ्ट के रुकते ही बाहर निकल गया। बैड बॉय। लीजा के नाश करने के कहने पर आन हल्का सा हंसी और अशमान के पीछे चल दी। अशमान का सारा ध्यान आन को उसकी पसंद की हर शय के साथ के देने पर था। वो इस बात से कितना बेखबर था कि सारा वक्त लीजा की हसरत भरी निगाहों से देख रहा, नजरों से में रहा था। इन दोनों की मोहब्बत को देखते हुए लीजा ने खुद से कसम खाई थी कि वह अशमान की इससे भी ज्यादा मोहब्बत हासिल करके रहेगी। इसने गहरी निगाहों से एक खूबसूरत सी हल्की जामुनी रंग की इंतहाई कामदार मैक्सी को देखा जो अशमान आन के लिए पसंद कर चुका था। आन की तो बहुत महंगी नहीं है। आन ने घबरा कर इस इंतहाई खूबसूरत मैक्सी को देखते हुए कहा, इसकी जितनी भी कीमत हो आन, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये रंग तुम पर बहुत खूबसूरत लगेगा। और जहाँ अम्मी ने तुम्हारा बारात का जोड़ा अपनी मर्जी से लिया, मैं चाहता हूँ वलीमे पर तुम सर से पैर तक मेरी पसंद का सजो। अशमान की बात पे आन के रुखसार गुलाबी हो गए। मैं इस मैक्सी में तुम्हारे ऐसे ही ये गुलाब बनता देखने के लिए किसी हद तक जा सकता हूँ। अशमान ने इसके कान में सुरगोशी की और उस मैक्सी को पैक करने का कहने चला गया। कितना खूबसूरत ड्रेस है ये, अशमान ने तुम्हारे लिए पसंद किया है। लिजा ने हसरत से इस मैक्सी को देखते कहा, मान का फेवरेट कलर है ये, उन्होंने हमारे वलीमे के लिए पसंद किया, ये ड्रेस अच्छी है ना। लीजा ने खूबसूरत सी कैफियत से इस ड्रेस को देखते हुए हाँ में सर हिलाया। फिर एक सलमान आकर इस ड्रेस को उतारने लगा। एक्सक्यूज़ मी, मैं आती हूँ। लीजा इतना कहकर वहाँ से चली गई, फिर वहाँ मौजूद हर ड्रेस को देखने लगी। अचानक इसकी नज़र वैसी हल्की जामुनी रंग के लहंगे पर पड़ी जो भारी कामदार करती दुपट्टे के साथ मैक्सी से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तुम्हें अंदाज़ा होगा शबान मलिक के हुस्न किस कहते हैं जब तुम मुझे अपने पसंदीदा रंग में देखोगे। लीजा ने मुस्कुरा कर सोचा उस लहंगे को अपने लिए खरीदने का इरादा कर लिया। काश वो जानती कि रूहों से मोहब्बत करने वाले लोग हुस्न के पुजारी नहीं होते। और शबान को तो आन की रूह से मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क था। अशान की शादी की तैयारियां जोरों शोर पर थी और सुल्तानी सी मकसद के लिए तहत तहत वसी मैदान में मौजूद खेतों को साफ कर रहा था ताकि वहाँ शादी के लिए टेंट वगैरह लगाए जा सके। अशमान का इरादा शायद अपनी शादी पर पूरे गांव को बुलाने का था। तपती धूप में आंखों पर काला चश्मा लगाए सुल्तान काम करने वालों पर नजर रखा हुआ था। जब आंखें बेचने पर दो खूबसूरत सी सहमी हिरनी जैसी बड़ी बड़ी सी आंखें से याद आई। इस सुनहरे ख्वाब को देखे से कितना अरसा गुजर चुका था, लेकिन अभी से याद करके सुल्तान को लगा कि एक ठंडी हवा का झोंका इसे इस तपती धूप में छू गया। बस कर दो इसके बारे में सोचना सुल्तान वाली, बस एक ख्वाब था, वो आखिर कब उतरेगी वो तुम्हारे जहन से।
सुल्तान उलझन से बड़बड़ाया तो उसे इन गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठों का लम्स याद आया। सुल्तान की बेबाकी पर इस परी का थर-थर काँपना याद आया। इसकी गुस्ताखियों पर इसका सुल्तान में सिमट जाना याद आया। खुदारा एक बार फिर से मेरे ख्वाब में आ जाओ नूरी, या फिर मेरे दिलो-दिमाग से निकल जाओ। बंदे की बर्दाश्त यहीं तक थी। सुल्तान ने गहरा साँस लेते हुए सोचा, लेकिन इस परी का इस बेबाकी पे मुँह बसोड़ना याद करके मुस्कुरा दिया। ज़िंदगी के इम्तिहान में सुकून बाइस था। नूरी का वो ख्वाब सुल्तान के लिए इस तपती धूप में किसको याद करके मुस्कुराया जा रहा है छोटू। अपने अकब से आने वाली जानी-पहचानी आवाज़ पे सुल्तान ने हैरत से पलट कर देखा, लेकिन वहाँ मौजूद शख्स को देखकर सुल्तान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा। तुम्हारी इतनी हिम्मत अज़म चौधरी कि तुम हमारी ज़मीनों पर आओ। सुल्तान ने अपनी बिटियां बेचकर अज़म के करीब होते हुए कहा। अज़म के लिए चेहरे पर मौजूद नफरत में साफ ज़ाहिर थी। चीची, क्या वक्त आ गया ना छोटू, किसी का भी वो दौर था कि तुम जिद करके हमारे घर आते थे क्योंकि तुम्हें अपने ज़म भाई के साथ खेलना होता था। याद है जब तुम्हारी अम्मी तुम्हें लेने आती थी तो रोते हुए मेरे पीछे छुप जाया करते थे। वो बातें करते हुए अज़म के चेहरे पे मुस्कान आई। नहीं जाना मुझे शमान भाई के पास, वो गंदा है, मुझे मारता है, मुझे ज़म भाई के पास जाना, पास रहना है, मुझे हमेशा ज़म भाई के पास रहना है, ये कहा करते थे ना तुम अपनी अम्मी से। अज़म ने आगे बढ़कर अपना हाथ सुल्तान के सर के पीछे रखा, लेकिन सुल्तान ने इसका हाथ नफ़रत से झटक दिया। और आज वो ज़म भाई तुम्हारे लिए अज़म चौधरी बन गया। अज़म ने अफसोस से कहा, क्योंकि अब मैं कोई बच्चा नहीं रहा। अज़म चौधरी, मत भूलो कि तुम शख्स की औलाद हो जिसने हमसे हमारा बाबा को छीना, हमें यतीम कर दिया। मुझे तुमसे नफरत है क्योंकि तुम हमारे बाप के कातिल की औलाद हो, क्योंकि तुम्हें अपने बाप की बजाय हम लोग गलत लगे। सुल्तान की बात पर अज़म के माथे पर पल आए। कड़वे माजी को खरीद कर सुल्तान बहुत से जख्म ताज़ा कर चुका था। यही बात तुम्हारे और तुम्हारे बाप के बारे में मैं भी कह सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक बात बताऊँ सुल्तान, तुम इस सब की वजह से मुझसे नफरत नहीं करते। सुल्तान अब बाकायदा दांत खिठुराकर अज़म को देख रहा था। तुम मुझसे नफरत करते हो क्योंकि अर्शमान मुझसे नफरत करता है। तुम, अम्मा भी, आन सब मुझसे सिर्फ इसलिए नफरत करते हो क्योंकि अर्शमान ऐसा करता है। अज़म की आंखों में नफरत देखकर सुल्तान की नफरत मज़ीद गहरी हो गई। इसलिए तुम सबको मुझसे छीन लिया, इसको आपको अपनी जानिब करके मुझे बिल्कुल तनहा कर दिया। मैं इसे इसकी सज़ा ज़रूर दूंगा। सुल्तान, देखना तुम में भी इससे सबको छीन लूँगा। अज़म ने नफरत से कहा और मुड़कर वहाँ से जाने लगा। अपने ख्वाब में अज़म चौधरी। सुल्तान की आवाज़ पर अज़म मुड़ा और मुस्कुराकर सुल्तान को देखा। ख्वाब और हकीकत का फ़र्क तुम्हें जल्द ही मालूम हो जाएगा छोटू। इतना कहकर अज़म वहाँ से चला गया और सुल्तान ने गुस्से से पास पड़ी कुर्सी को ज़मीन पर पटक दिया। अपना माजी याद करके वो भी अंगारों पे लौट गया था। इस मरतबा हमारी चावलों की फसल बहुत अच्छी होगी मलिक जी, अर्शमान के मुलाजिम ने इसे बताया। तो अर्शमान ने खामोशी से हाँ में सर हिलाया और एक दायराना निगाह अपने खेतों पर डाली जहाँ दूर दूर तक चावलों की फसल लगी नजर आ रही थी। ज़्यादा खुशी मुझे तब होगी जब हमारी फसल अज़म चौधरी से ज़्यादा होगी। इसका एक तरीका है मेरे पास मलिक साहब, एक मुलाजिम ने थोड़ा सा आगे होकर कहा। तो अर्शमान ने सवालिया नज़र से देखा। अज़म चौधरी की फसल जब पक कर तैयार होगी तो हम इसके खेत में आग लगवा देंगे, ऐसा हमारा मुनाफा इससे ज़्यादा होगा और गाँव के लोगों में आपकी वाह। मुलाजिम जो अपनी धुन में बोलता जाता, अर्शमान की आंखों में गुस्सा देखकर खामोश हो गया। इसे आज ही काम से निकाल दो रघु, मुझे ऐसे शख्स जाने चाहिए जो अनाज और गरीब के रिस्क के नुकसान को दुश्मन का नुकसान समझता है। अर्शमान की बात पर ज़ात ने अपना थूक निकाला। मलिक साहब, मैं तो इसने कुछ कहना चाहा, लेकिन अर्शमान की घूरी पर इसके अल्फाज मुंह में ही रह गए। अगर फिर कभी कुछ बोलने के लिए काबिल रहना चाहते हो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अर्शमान के करान में आदमी फ़ौरन वहाँ से चला गया। अर्शमान अपने गुस्से को कम करता है फिर से अपनी फसलों को देखने लगा। फिर इसने मुड़कर कच्चे रास्ते की दूसरी तरफ देखा जहाँ अज़म चौधरी की फसल लहरा रही थी। दौड़ लगा लो अज़म, देखना मैं ही जीतूंगा। अर्शमान के कानों में अपनी आवाज़ पड़ी। चल बच्चू, आज तेरा ये शौक भी पूरा कर ही देते हैं। अज़म की आवाज़ कानों में पड़ने के बाद अपने और अज़म के बचपन का अक्स इसे कच्चे रास्ते पर खिलखिलाकर भागते हुए नजर आया। ये मेरे खेत है ना अज़म, और वो तुम्हारे। अर्शमान को अपनी कई बात याद आई तो वो अपनी बुट्टियाँ बेच कर रह गया। नहीं मेरे भाई, यहाँ कुछ तुम्हारा मेरा नहीं, ये सब हमारा, ये गाँव हमारा है, चौधरियों और मलकों का गाँव। अज़म की आवाज़ पर गूंजने पर अर्शमान ने से अपनी आंखें मूंद गया। माजी की वो मीठी यादें आज कड़वा जहर खोल रही थी। मालिक, अपने मुलाजिम के कंधे पर हाथ रखने से अर्शमान यादों की सैर से निकला। बादल हो रहे हैं मालिक, आंधी आ रही है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुलाजिम की बात पर अर्शमान ने हाँ में सर हिलाया। तुम सब चलो, मैं आता हूँ। मुलाजिम ने हाँ में सर हिलाया, बाकी मुलाजिमों को लेकर वहाँ से चला गया। जबकि अर्शमान इस आंधी में भी कितनी देर वहाँ खड़ा अपनी माजी को याद करता रहा था। ही एक दरख्त के पीछे से आने वाली आवाज़ पे अर्शमान हैरान होकर मुड़ा। कौन है वहाँ? अर्शमान के पुकारने पे एक मुस्कुराता चेहरा दरख्त की ओट में से निकला। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लीजा को देखते अर्शमान सख्ती से पूछा तो लीजा मुस्कुराकर दरख्त के पीछे से बाहर निकल गई। तुमसे बात करनी थी, लेकिन तुम या तो मिलते नहीं या अकेले नहीं मिलते, इसलिए सोचा तुम्हारे पीछे आ जाती हूँ।
लीज़ा ने कमरे के पीछे हाथ बांधे और चलकर आयुष्मान के साथ सामने आकर खड़ी हो गई। इस वक्त वो हल्के से रंग के फ्रॉक में मलबूस थी, जिस बाजू वे शॉर्ट थे, लेकिन इसे फ्रॉक के नीचे जीन्स पहन रखी थी। बालों को खुला छोड़े मुनासिब से मेकअप के साथ वो आज मामूल से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। आयुष्मान ने ध्यान दिया कि वो पहले की तरह उपाश कपड़े नहीं पहनती और सबके साथ बदतमीजी करने की बजाय बहुत मोहब्बत से पेश आती है। वो इन्हीं बातों की वजह से आयुष्मान की सख्ती भी कम हो चुकी थी। कहो क्या कहना है तुम्हें? आयुष्मान के सवाल पर लीजा ने चेहरे को हवा की वजह से चेहरे पे आते बाल हटाए और मुस्कुरा दी। आई नो मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास वक्त नहीं है ज़्यादा। मुझे कैसे भी तुम्हारी शादी से पहले तुमसे ये बात करनी थी। इसकी बात आयुष्मान के माथे पर बल आए। कैसी बात? अलीजा की घबरा कर अपने होठों को काटा और एक घुटने को ज़मीन पर टेक कर रुक कर झुके हाथ में पकड़ा फूल आयुष्मान के सामने किया। आई रियली रियली लाइक यू बैड बॉय, बहुत चाहती हूँ मैं तुम्हें, सबसे ज़्यादा चाहती हूँ मैं तुम्हें। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? आयुष्मान के गुस्से चलाने पर लिज़ा फ़ौरन खड़ी हुई। बकवास नहीं करी, सच कह रही हूँ। आई लव यू, शट अप, जस्ट शट अप। तुम्हारी बहन का होने वाला शौहर हूँ मैं। इस बात पर लिज़ा की आंखों में चूर उतरा और आयुष्मान के करीब आई। तो कोई बात नहीं, तुम मुझसे शादी से इनकार करके मुझसे शादी कर लो। यकीन करो आन तुम्हें मैं जितना नहीं चाहती होगी। आयुष्मान इस बात पर आपे से बाहर हो गया। इसने लिज़ा के हवा में लहराते भौरे बाल अपनी मुट्ठी में जगड़े और निंगारा होती आंखों से इसे घूरने लगा। मेरी आन का जिक्र भी मत करना, वरना तुम्हारी ज़बान गुद्दी से निकाल दूंगा। मैं इश्क करता हूँ उसे। तुम क्या, दुनिया की कोई भी लड़की इसे मुझसे जुदा नहीं कर सकती। आयुष्मान की आंखों में आन के लिए मोहब्बत देखकर लिज़ा का जुनून मजीद बढ़ गया। तुम मेरे हो आयुष्मान मलिक, तुम मुझे जानते नहीं, जो चाहती हूँ उसे पाकर एकदम लेती हूँ। आयुष्मान के होठों पर तंजिया मुस्कुराहट देकर लिज़ा अपनी मुठ्ठियाँ भीज गई। अपनी जी जान लगा लो, मैं अपनी आन का था और इसका ही रहूँगा। कर लो जो कर सकती हो। इतना कहकर आयुष्मान ने इसे झटके से छोड़ा, वहाँ से चला गया। जबकि इसके जाने के बाद लीजा इसके कच्चे रास्ते पर बैठती चली गई। शायद रंग की आंखें गुस्से और जुनून से तर हो रही थी। तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे, मैं छीन लूंगी तुम्हें, इससे छीन लूंगी। लीजा चिल्लाया, फूट फूट कर रोने लगी। साथ ही बारिश भी शुरू हुई, जो इसके आंसुओं को धोकर बेमोल करने लगी थी। क्या बात है, कल की शेरनी आज भीगी भीगी बनी हुई सुनसान रास्ते पे रह रही थी। ऐसे क्या हो गया इसके साथ? एक आवाज़ पे लिजा ने लाल होती आंखें उठाकर अज़म को देखा, जो इसके सामने खड़ा मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था। अकेला छोड़ दो मुझे, जाहिल इंसान। लिजा ने आंखों से चिल्लाई तो अज़म जाने की बजाय इस मुस्कुरा कर इसके सामने बैठ गया। जानती हो ना मैं अंग्रेज़ी समझूंगा, ना ही तुम उर्दू, तो हमारी तो बात करना ही बला जवाज़ है। अज़म हल्का सा मुस्कुराते हुए लिजा आंसू से लबरेज आंखों से इसे देखने लगी। लेकिन इस बात का फ़ायदा भी तो हो सकता है ना कि तुम अपना गम मुझे बता लो और मैं अपनी तन्हाई तुमसे बांट लेता हूँ। एक दूसरे को समझेंगे नहीं तो राज कैसे खुलेंगे एक दूसरे के? अज़म ने मुस्कुराकर कहा तो लिज़ा नम आँखों से उसे देखने लगी। आंसू से लाल होती आंखें बारिश में भीगा वजह उसके जिस्म को मज़ीद तौशाना कर रहा था। लेकिन अज़म की नज़रें इसके मासूम मजबूर चेहरे पर टिकी थी। मुझे इससे मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है। न जाने लिज़ा की बातों को समझे बगैर ही समझ गई थी। ये अपना गम किसी से बांटना चाहती है, जो रोते हुए इसको हर बात बताने लगी। लेकिन वो मुझे नहीं चाहता, वो इसे चाहता है, शायद इतना ही चाहता है जितना मैं इसे चाहती हूँ। लिज़ा ने घायल आंखों से अज़म को देखा, जो ऐसे ऐसे सुन रहा था जैसे इसकी हर बात समझ रहा हो। जानते हो हर कोई मुझे ही पाना चाहता है, लेकिन मैं किसी को पलट कर नहीं देखती। सोचा था लीजा सिर्फ इसकी होगी, जो इसके दिल पर हुकूमत करेगा। लीजा के होठों पर घायल मुस्कान आई, लेकिन जिसे लीजा ने चाहा उसे दुतार गया, बुरी तरह से दुत्कार गया। इतना कहकर लीजा फुट फुट कर रोने लगी। ऐसा कितनी देर इसके पास घुटनों के बल बैठा ऐसे गहरी नजर से देखता रहा। कभी मेरी जिंदगी में हर खुशी थी, प्यार से ज़्यादा जाने वाले माँ बाप, बहुत ही प्यारी सी नानी, दो छोटे भाई, भाप फुप्पो आन, सब थे मेरे पास, पूरा जहान था। अज़म की आवाज़ पर लीजा ने सर उठाकर से देखा और अपने आंसू को रोककर उसके चेहरे को संजीदगी से देखने लगी। फिर एक तूफान आया, सब बिखर गया, मैंने अपने माँ बाप को खो दिया। अज़म ने करब से लीजा की जानिब देखा, जो इसे ही देख रही थी, जिसकी इसकी हर बात समझ रही हो। जानती हूँ मेरे माँ बाप की जान के मुझे किसी के प्यार की ज़रूरत थी, एक सहारे की ज़रूरत थी, लेकिन इस शमा ने मुझसे सब छीन लिया। मेरी नानी, भाई, आन, इसे सब छीन कर अपना दामन भर लिया, मुझे तनहा कर दिया, बिल्कुल तनहा। अज़म ऐसा लग रहा था जैसे यादों के भंवर में अटका हुआ हो। बारिश अभी भी इन दोनों को भिगो रही थी और वो दोनों हर शय से बेनियाज एक दूसरे को अपना गम सुना रहे थे, ये जानने के बावजूद कि सामने वाला इसकी बात नहीं समझेगा। अब मैं भी इससे आन को छीन लूंगा, इसे छीन लूंगा जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहता है। फिर इसको इसी तरह तड़पता देखकर मुझे सुकून होगा, जैसे मैं तड़पता था। हाँ, मैं इसे इसकी मोहब्बत छीन लूंगा, बिल्कुल जैसे इससे मुझसे सब छीन लिया था। अज़म ने नफ़रत से अपनी मुठ्ठियाँ भींचकर कहा, जबकि लीज़ा अभी भी खामोशी से उसे देख रही थी। लीज़ा ने कभी हारना नहीं सीखा। मैंने आज तक जो चाहा वो पाया, मैं इसे पाकर रहूँगी और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। लीज़ा ने मिठिया भूंजते हुए खुद जुनून से कहा, एक दूसरे को अपना गम बताकर अब दोनों ही करब की इंतहा पर बाहर आ चुके थे। देखा एक दूसरे को बताने का कितना फ़ायदा हुआ ना, तुम मुझे समझ कर मेरे राज जान पाए और ना मैं तुम्हें समझ कर, लेकिन दिल का बोझ हल्का हो गया।
अज़म ने मुस्कुराकर कहा तो लीज़ा के माथे पर बल आया। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो जाहिल आदमी। लीज़ा ने दांत पीसकर कहा तो अज़म मुस्कुरा दिया। उफ कम अंग्रेजी बोला करो, विलायती चूजी सर पर से गुजर जाती है। लीज़ा ने आंखें सुकड़कर अज़म को देखा, फिर वो मुस्कुरा दी। दोनों ही अपने नशे और जुनून में किसी को मोहब्बत को आंख लगाने का सोच बैठे थे, ये जानने बगैर कि किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। अशमा इंतहाई ज़्यादा गुस्से में घर दाखिल हुआ। लीज़ा की वो बातें इसे पप्पे से बाहर कर रही थी। आखिर से क्योंकि वो अंदाज़ा हुआ कि ये लड़की इस हद तक आगे बढ़ चुकी थी। अपने कमरे में आकर शमा ने गुस्से से कुर्सी को ज़मीन पर पटका और इस बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। इसका दिल किया भी शाहिद के पास जाकर इसे कहे कि अपनी घटिया बेटी को उठाकर यहाँ से चला जाए। मान आन की परेशानी सी आवाज़ पर शमा ने दरवाजे की जानिब देखा, जहाँ आन खड़ी सहमी निगाहों से इसकी जानिब गुस्से को देख रही थी। मैंने कुछ टूटने की आवाज़ सुनी थी, क्या हुआ इतने गुस्से में क्यों हैं आप? आन के सवाल पर शमान फ़ौरन इसके पास आया और इसे कमरे में खींचकर दोबारा बंद कर दिया। इससे पहले कि आन कुछ समझ पाता, शमान इसे दरवाजे से लगाकर अपने दोनों हाथ इसके सर के इर्द-गिर्द रख चुका था। आन ने सहम कर इसकी जानिब देखा। शमान का ये गुस्सा अब सच में डरा रहा था। क्यों आन, हर कोई क्यों जीना चाहता है तुम्हें मुझसे? हर कोई हमारी मोहब्बत का दुश्मन है। आन ने हैरत से इसकी जानिब देखा। क्या इसे अज़म के बारे में पता चल गया था? क्या हुआ मान? शमान ने इसे जवाब देने की बजाय अपना माथा इसके माथे से टिका दिया और अपनी आंखें मूंद गया, जबकि इसकी इस गुर्बत पे आना सांस लेना भूल गई थी। मैं इन्हें तुम्हें नहीं छीने दूंगा आन, मैं किसी को भी तुमसे खुद से नहीं छीनने दूंगा। इश्क हो तुम मेरा, जीने की वजह हो। आन अभी भी हैरत से अर्शमान को देख रही थी, जो इस वक्त कर्ब की इंतहा पर थे। ज़रूर अज़म ने ही इसे कुछ कहा था। मान मुझ पर भरोसा रखें, मैं आपके साथ हूँ हमेशा। मैं आपके अलावा किसी और के बारे में सोचना भी गुनाह समझती हूँ। आन की बात पर अर्शमान ने अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे को मोहब्बत से देखता इससे दूर हो गया। अगर किस्मत ने हमारा साथ लिखा तो हमें कोई नहीं जुदा कर सकता। अर्शमान का सर इनकार में हिलता देखा आन नजराम में आ गई। मैं किस्मत को भी हमें जुदा करने की इजाज़त नहीं दे सकता आन इसकी बात मुस्कुराकर इसके पास है, उसका हाथ आहिस्ता से पकड़ लिया। मुझ पे और हमारी मोहब्बत पे भरोसा रखे मान, जब तक हम साथ हैं कोई कुछ भी कर ले हमारे दरमियान नहीं आ सकेगा। प्लीज़ आप मुझसे कभी बदगुमान मत होना। अशमान ने इस बात पे आंखें सिकड़ कर इसे देखा। अशमान मर तो सकता था लेकिन अपनी आन से बदगुमान नहीं हो सकता था। आन को मुस्कुराता देखा अशमान भी अब सुकून में आ चुका था। हाँ, इन दोनों को कभी जुदा नहीं कर सकता था। तो फिर परेशानी को छोड़ो, खुश इस लम्हे को जियो जो हमारे लिए बहुत ख़ास है। आन ने बहुत मोहब्बत से कहा और वहाँ से जाने लगी, लेकिन अशमान ने फ़ौरन इसका हाथ थाम लिया। लम्हे ख़ास तब होंगे जब तुम दुल्हन बनकर यहाँ आओगी। अशमान की बात पर आन के होठों पे एक शर्मीली सी मुस्कान आई और अपना हाथ छुड़ाकर धड़कते दिल के साथ वहाँ से भाग गई, जबकि इसके जाते अशमान फिर से लीजा के बारे में सोचने लगा। तुम कुछ भी कर लो, मैं अपनी आन का ही रहूँगा, बिल्कुल जैसे वो मेरी है। हमारे दरमियान में किसी को नहीं आने दूंगा, किसी को भी नहीं। अशमान जब से मुठियाँ बेचता हुआ कहने लगा। वो लीजा और आज़म दोनों के सामने आन को पाकर अपनी मोहब्बत को अमर करने का इरादा रखता था। सुल्तान साहब कोई आपसे मिलने आया है। सुल्तान अशमान के डेरे पर मौजूद इसके हिस्से का काम देख रहा था, जब मुलाजिम के बताने पर सुल्तान ने सवालिया नज़र से इसे देखा। कौन? कोई रशीद अहमद है, कहता है आपसे मिलना है। सुल्तान ने इस बात में सर हिलाया। अंदर भेजो इसे। मुलाजिम इस बात में सर हिला के चला गया और सुल्तान इस नाम के बारे में सोचने लगा जो इसे सुना हुआ सा लग रहा था। अशमान को किसी काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ा था, इसलिए आज वो अशमान की जगह डेरे पर आया था। इससे पहले कि सुल्तान रशीद अहमद को याद करने में ज़्यादा मेहनत करता, एक बूढ़ा आदमी इस कमरे में दाखिल हुआ। इस आदमी को देखकर सुल्तान फिर से जरा में आ चुका था, क्योंकि रशीद अहमद कोई और नहीं, इसकी इस बीवी का बाप था, जिसे सुल्तान अभी तक बुलाने की हर मुमकिन कोशिश करता आया था। सलाम साहिब। रशीद ने सर पर रखी एक गठरी सुल्तान के पास पड़ी कुर्सी पर रखी और उसके सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। आप यहाँ? सुल्तान की हैरत पर रशीद हल्का सा मुस्कुराया। मैं बहुत मुश्किल से छुपा कर यहाँ आया हूँ साईं। सरदार ने मेरा या मेरे घर वालों का घर से निकलना बंद कर दिया ताकि मैं अपनी बेटी से ना मिल सकूँ, लेकिन आज वो अपने बेटे के साथ शहर चले गए तो मैं मौका देकर आपसे मिलने आ गया। सुल्तान ने इस बात में सारे से अपने सामने बैठने का इशारा किया। आप कुछ लेंगे? सुल्तान को समझ नहीं आता इस शख्स से क्या बात करे। वो तो जानता भी नहीं था कि इसकी बेटी किस हाल में होगी, लेकिन वो इतना जानता कि वो सुल्तान मलिक के घर थी तो महफूज ही होगी। नहीं साईं जी, बस मुझे आपसे मिलना था। रशीद ने सर झुकाकर फिर हिम्मत करके इससे सुल्तान की जानिब देखा। मेरी बेटी कैसी साईं? मेरी कनीज कैसी है? रशीद के सवाल उसकी आंखों में आंसू देखकर सुल्तान का दिल किया अपनी जान ले ले। आखिर इसने क्यों कर वो जिम्मेदारी उठाई जो वो निभा नहीं सकता था। आप फिक्र मत करें, मैं इसका ख्याल रखूंगा। सुल्तान ने हिम्मत करते हुए कहा, लेकिन इसकी ज़मीन ने इसे मलामत करते हुए इसे झूठा कहा था। वो बहुत मासूम है साईं, भी बच्ची है अभी, अगर इससे कोई गलती हो जाए तो इसे माफ़ कर देना, झिल्ली है वो। रशीद ने अपने हाथ जोड़कर कहा और ऐसा करने के बाद करके वो सुल्तान को उसकी नज़रों में मज़ीद गिरा चुका था। अगर आप इससे मिलना चाहें तो हवेली जाकर मिल सकते हैं। सुल्तान की बात पर रशीद के चेहरे पर एक साया सा दौड़ गया। नहीं साईं जी, मैं पहले ही आकर बहुत बड़ी नादानी कर चुका। अगर सरदार को पता चल गया ना तो न जाने क्या कुछ करेंगे।
میری ایک اور بیٹی بھی ہے سائیں، مجھے اس کی پرواہ بھی کرنی ہے۔ سلطان نے گہرا سانس لے کر اس بات میں سر ہلایا۔ اسے احتیاط ملک جیسے گھٹیا انسان سے بے انتہا نفرت ہو رہی تھی، جس نے سرداری کے نام پہ معصوم لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا۔ ہاں، یہ خربوزے میں اپنے کھیت سے توڑ کر لایا ہوں سائیں، جانتا ہوں بڑا حقیر تحفے، لیکن اس غریب کی اوقات میں کچھ نہیں تھا جو آپ کو دے سکتا۔ رشید نے اپنے ہاتھ سلطان کے سامنے جوڑ دیے۔ نہیں، آپ ایسا کہہ کر مجھے شرمندہ مت کریں، آپ کا بہت شکریہ۔ رشید کے چہرے پہ اس کی بات پر خوشی آئی تھی۔ آپ بہت زیادہ اچھے انسان ہیں سائیں، اپنی بیٹی کی جو فکر مجھے تھی اب وہ نہیں رہی، میں جانتا ہوں آپ جیسا انسان اس کا بہت خیال رکھے گا۔ اتنا کہہ کر رشید کھڑا ہو گیا۔ شرمندگی کے بوجھ تلے تبے سلطان میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ یہ خربوزے کنیز کو دے کر کہیے گا اس کا باپ اس کے لیے لایا تھا، اسے بہت پسند ہے یہ۔ اتنا کہہ کر رشید سے کچھ بولا نہیں گیا، وہ اپنے آنسو پر قابو کرتا سلطان کو خداحافظ بول کر وہاں سے چلا گیا، لیکن جانے سے پہلے وہ شخص سلطان کی ضمیر کو کتنی بری طرح سے جھنجھوڑ چکا تھا۔ وہ شخص سلطان کو ایک مسیحا سمجھتا تھا جو اس کی بیٹی کا خیال رکھتا ہوگا، جبکہ سلطان نے تو پلٹ کر اسے ایک بار بھی دیکھا نہیں تھا، اس سے پوچھا بھی نہیں تھا کہ وہ ٹھیک تو ہے یا اپنا گھر بار چھوڑنے میں کس قدر دکھی ہے۔ بس اسے اپنی میٹ بنا کر گھر والوں کے سامنے پیش کر چکا تھا۔ وہ خود ایک ایسی لڑکی کے خیالوں میں کھویا رہتا جو اس دنیا میں تھی نہیں، بس ایک خواب تھی۔ سراب کے پیچھے بھاگتا سلطان ملک اصلیت کو اس پر بالکل فراموش کیے ہوا تھا۔ لعنت ہے تم پر سلطان ملک، انسانیت کے نام پر دھبا ہو تم۔ سلطان کے ضمیر نے اسے ملامت کی تو سلطان نے گہرا سانس لیا اور رشید کی لائی اس گٹری پر نظر ڈالتا اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ احساس شرمندگی سے اندر تک جھنجھوڑ رہا تھا۔ حویلی جانے کے ارادے سے وہ گاڑی میں بیٹھا اور سارا راستہ وہ رشید اور اس کی لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا جس کا اس نے چہرہ تک نہیں دیکھا تھا۔ حویلی پہنچ کر وہ اما بی کے کمرے میں گیا تھا، وہ نماز ادا کرنے میں مصروف تھی۔ سلطان خاموشی سے وہاں سے موجود صوفے پہ بیٹھ کر ان کے نماز ختم کرنے کا انتظار کرنے لگا۔ دعا مانگ کر اما بی نے مسکرا کر سلطان کو دیکھا، لیکن سلطان کے چہرے پہ اضطراب دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ کیا بات ہے سلطان، اتنا پریشان کیوں ہوں؟ اما بی نے اپنی نماز والی کرسی پر جائے نماز لپیٹ کر رکھتے ہوئے پوچھا۔ سلطان کے چہرے پہ احساس ندامت اور اضطراب انہیں بہت پریشان کر رہا تھا۔ اما بی وہ میں، سلطان نے اتنا کہہ کر اپنا سر جھکا لیا، انہیں سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کہے۔ اما بی وہ لڑکی کہاں ہے جسے میں اپنے ساتھ لایا تھا؟ سلطان کے سوال پہ اما بی ہلکا سا مسکرا دی۔ میں نے اسے راشدہ کی ذمہ داری پر دیا تھا بیٹا، ابھی کل ہی میں نے راشدہ سے اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ راشدہ بالکل ٹھیک ہے اور اپنی ذمہ داری اچھے سے سنبھال رہی ہے، لیکن تم کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہو؟ اما بی کے سوال پر سلطان اٹھ کر ان کے پاس آیا اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ میں نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا تھا اما بی، بہت حسین لڑکی کو، میں چاہ کر بھی اسے اپنے ذہن سے نکال نہیں پا، جتنا اس کے بارے میں نے سوچنا چاہتا تھا اتنا ہی سوچتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ اما بی نے ہلکا سا مسکرا کر سلطان کو دیکھا۔ سراب کے پیچھے بھاگنے والا اور خوابوں میں جینے والا انسان ہمیشہ پچھتاتا ہے بیٹا۔ خواب دنیا کی تلخی سے خود کو بچانے کا ایک اور ذریعہ تو ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں جینا اور ان کے پورے ہونے کی توقع کرنا بس حماقت ہے، کیونکہ جواب دہ ہمیں اس حقیقت کا ہونا ہے بیٹا، خود سے منسلک رشتوں کا ہونا ہے۔ سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ سلطان کے اس بات میں سر ہلانے پہ اما بھی مسکرا دیں۔ تو بس ان کی پرواہ کرو جو تم سے منسلک ہے، اور جب ایسا کرتے تھک جاؤ تو اپنی خوشی کے لیے کچھ دیر اپنے خواب میں جی لو۔ سلطان نے کچھ سوچ کے اما بی کی جانب دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ وہ لڑکی کہاں ہے اما بی؟ راشدہ کے پاس ہوگی، تم خود بھی ایک مرتبہ اس سے پوچھ لو کہ اسے کوئی مسئلہ تو نہیں؟ سلطان ہاں میں سر ہلا کر اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اسے بس لڑکی کی خیریت معلوم کرنی تھی جو اس کی ذمہ داری تھی۔ راشدہ کہاں ہے؟ ایک ملازم سے پوچھنے پر ملازمہ نے کچن کی طرف جانب اشارہ کیا تو سلطان اس طرف چل دیا، لیکن کچن میں داخل ہونے پر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی رگیں غصے سے تن گئی۔ کنیز صاف صفائی کے بعد برتن دھو رہی تھی۔ کل راشدہ کو اس کا کام پسند نہیں آیا تھا، جس کی سزا کے طور پہ آج اسے ناشتہ بھی نہیں ملا تھا۔ کنیز نے اس حویلی کو دیکھ کر کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ یہاں اس کے ساتھ یہ سلوک ہوگا۔ راشدہ سارا دن اسے جانوروں کی طرح کام لیتی تھی اور اپنے ساتھ ساتھ باقی ملازموں کو بس اس پر حکم چلانے کے لیے رکھا تھا۔ شاید وہ ہر ملازمہ کے حصے کا کام کنیز سے ہی کروا رہی تھی۔ کئی مرتبہ کنیز نے سوچا کہ سلطان سے جا کر پوچھے کیا وہ اسے انسان نہیں سمجھتا یا اس سے کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن کنیز اس کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی۔ آخر سے کون سی کنیز کی پرواہ تھی؟ اس نے تو ایک بار پلٹ کر بھی کنیز کو نہیں دیکھا تھا۔ ویسے بھی اس رات راز کمرے میں جانے کے مطلب کنیز میں اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کی بے باکیاں یاد کر کے آج بھی کنیز کا روم کانپ جاتا تھا۔ کنیز نے سوچوں کو جھڑکتے ہوئے اپنے سامنے برتنوں کے ڈھیر کو دیکھا جو اتنا دھونے کے بعد بھی کم نہیں ہوا تھا۔ ابھی اس نے ایک جگ ہاتھ میں پکڑا ہی تھا جب کھانا نہ کھانے اور مسلسل کام کرنے کی وجہ سے اس کا سر بری طرح سے چکرایا اور جگ کنیز کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر بوس ہو گیا۔ چھن سے کچھ ٹوٹنے کی آواز پہ کنیز نے سہم کر شیشے کی جگ کی ان کرسیوں کو دیکھا، سہم کر ان کرسیوں سے دور ہو گئی۔ کچھ ٹوٹنے کے بعد آواز پہ راشدہ فوراً باورچی خانے میں آئی، انتہائی غصے سے کنیز کو گھورنے لگی۔ یہ کیا کیا تو نے؟ اتنا مہنگا جگ توڑ دیا، بیگم صاحبہ کیا حال کریں گی تیرا؟
राजदा के चिल्लाने में पहले ही सहम कर इसने टूटे हुए जग को थोड़ी देखती कनीज मजीद सहम कर रोने लगी। मम्मा मुझे माफ़ कर दें बाजी, मुझे हाँ। कनीज के अल्फाज उसके मुंह में रह गए जब राजदा आगे बढ़ी और जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पे मारा। तुझे आज मैं बताती हूँ यूँ टूटे हुए हाथों से काम करने का नतीजा क्या होता है। इससे पहले कनीज पहले थप्पड़ के असर से बाहर आती राजदा ने दो और थप्पड़ इसके मुंह पे मारे जिनकी शिद्दत को बर्दाश्त न करते हुए गिर गई और किचन का काउंटर इसके माथे पर लगा। राजदा ने आगे होकर इसे बालों से पकड़ना चाहा लेकिन अचानक इसकी नज़र किचन के दरवाजे पड़ी जहाँ सुल्तान खड़ा ये मज़ा गुस्से से अंगारा होती आंखों से देख रहा था। तुम्हारी इतनी ज़रूरत कि तुम हमारे घरों के मुलाजिमों से ये सलूक करो। सुल्तान के गुस्से पर राजदा पूरी तरह सहम गई। मम्मा माफ़ कर दें साहब जी, लेकिन ये आपकी मेड ने बेगम साहिबा का जग तोड़ दिया, इसलिए मैं मैट के आई ये वही लड़की थी जिसे सुल्तान इस लड़की को फर्श पे सर झुका हुआ रोता देखा। सुल्तान पत्थर का हो चुका था। इसकी नजरें ने मेहंदी लगे सांवले हाथों पे पड़ी जिनकी मेहंदी अब मिट चुकी थी, लेकिन फिर भी सुल्तान इसे पहचान गया था। यानी इसकी छत के नीचे ये सुलूक एक मुलाजिम नहीं बल्कि इसकी भी अपनी बीवी के साथ हो रहा था और वो इससे बेखबर था। सुल्तान फौरन आगे बढ़ा, उस लड़की को कंधे से पकड़ कर खड़ा किया। बेसाख्ता सुल्तान की नज़र इसके माथे पर मौजूद जख्म पर पड़ी जिसमें से खून रस रहा था। कसूर इसी का है सुल्तान साहब, इंतहा बेवकूफ़ लड़की, मैं तो कहती हूँ यहाँ से लाए थे आप इसे वहीं छोड़ाएं, यह आँख पढ़ने के काबिल नहीं। रास्ता की बातें करने से सहम कर अपनी आंसू से तर आंखों से सुल्तान को देखा और इनसे निगाहों को देखते ही सुल्तान को लगा जैसे साथ में आसमान टूट कर इस पर गिरे हों। इसे ख्वाब की वो परी सच इसे ख्वाब की वो परी सच थी जिसकी नूरी का हकीकत रूप धारे इसके सामने खड़ी थी। जिस लड़की को ख्वाब तस्वीर करता था वो इसके लिए तड़पता रहा था। वो सर से लेकर पैर तक किसी की मलकियत थी। नूरी सुल्तान के लबों से बेआवाज से पुकारा, फिर इसकी नज़र इन आंखों पर हटकर इसके गाल पर मौजूद थप्पड़ों के निशान और माथे से निकलता खून पर पड़ते उसने अपनी नूरी से ध्यान हटाकर इंतहा कदमनाक आंखों से रास्ता को देखा। सुल्तान की इस बरी को तकलीफ देने की वजह से सुल्तान इसे जिंदा दरगोर कर देना चाहता था। बगैर कुछ सोच समझे सुल्तान कनीज को छोड़कर राजदा के पास आया, उसकी गर्दन को मजबूती से अपने हाथ में दबोच लिया। तुमने इस पर हाथ उठाया, मैं तुम्हारे हाथ उखाड़ कर फेंक दूंगा, जाहिल औरत। सुल्तान के चिल्लाने पर कनीज के साथ वहाँ आई हर मुलाजिम सहम कर इसे देखने लगी। मम्मा मुझे माफ़ कर दें साहब, गलती जो तुमने की है गलती नहीं है। अगर चाहती हो कि तुम्हें जिंदा छोड़ दूँ दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना जान ले लूँगा मैं तुम्हारी हवेली की नौकरी नहीं बल्कि इस गाँव से निकालता हूँ। कल ही अपने शौहर और बच्चों के साथ यहाँ से दफ़ा हो जाना, वरना तुम्हारी मैयत पर रोना पड़ेगा इन्हें। इतना कहकर सुल्तान ने झटके से राजा को छोड़ा और रोती हुई कनीज का हाथ पकड़ कर इसे वहाँ से ले आया। अपने कमरे आकर इसने कनीज को बेड पर बिठाया और मुर्दा आंखों से इसके झुके हुए सर को देखने लगा। यानी इस रात कनीज इसके पास आई थी और वो नींद की दवाई के जेर असर इसे ख्वाब समझ बैठा था। सुल्तान सोचना भी नहीं चाहता था कि वो इस बारे में क्या सोच रही होगी। जो बात इस वक्त सुल्तान को इसराब में मुब्तला करती वो ये थी कि इसका सबसे हसीन ख्वाब ही इसकी मलकियत है और सुल्तान को इसी बात का सबसे ज़्यादा अफसोस था। वो कैसे हनाबिया को खैर फरामोश करके हर हक से दे सकता था, ये सुल्तान के लिए नामुमकिन था। एक गहरा सांस लेकर सुल्तान ने कनीज की थोड़ी को पकड़कर इसके चेहरे पर किया तो इसकी नज़र इसकी जख्म पड़ी जिससे खून बहकर अब से इसके चेहरे पर आ रहा था। सुल्तान को उससे समझ न आया कि वो क्या करे तो जल्दी से कमरे में से निकल कर आन के कमरे की जानिब चल दिया और बेचैनी से इसका दरवाज़ा खटखटाने लगा। सुल्तान भाई क्या हुआ, खैरियत तो है? दरवाज़ा खोलते ही आन के सुल्तान से के चेहरे पर परेशानी को देखते हुए पूछा। इसका खून निकल रहा है आन, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, मेरे साथ आओ। सुल्तान के ऐसे कहने पर आन कमरे से जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाई और सरान के पीछे चल दी। सुल्तान के कमरे में एक लड़की को बेड पर बैठा देखा आन इसके पास आ गया, उसके माथे की चोट का मुआयना करने लगी। आन के जख्म को छूते ही कनीज के होठों से सिसके निकली जिस पर सुल्तान अपनी मुठियां बेच सबसे बीच गया। कुछ नहीं हुआ, रो मत, अभी ठीक हो जाएगा। आन ने इसे बच्चे की तरह पिचकारा और उसका जख्म का साफ करने लगी। दवाई की चुभन को महसूस करती कनीज फिर से सिसकी और सुल्तान की बस हुई थी, इसलिए वो अपने कमरे से बाहर निकल गया। बाहर आकर इसने हाथ का मुक्का बनाकर दीवार पर मारा। क्यों, आखिर क्यों इसे ही सुल्तान का हिस्सा होना था? सुल्तान नाबिया के सिवा किसी को अपना नहीं सकता था, इसे इसकी इजाज़त नहीं थी। हाथ में और अपने दिल में उठती तकलीफ को नज़रअंदाज करके सुल्तान अम्मा भी के कमरे की तरफ चल दिया और इजाज़त के बगैर ही दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हो गया। अम्मा भी ने हैरत से सुल्तान के चेहरे पर इस गुस्से को देखा। क्या हुआ सुल्तान, आपने कहा था वो ठीक है, आपने कहा था राजदा उसका ख्याल रखती है, वो जानवर से भी बदतर सलूक करती रही है नूरी के साथ और आपको उसकी खबर भी ना हुई? अम्मा भी हमारी छत के नीचे वो इस पर हाथ उठाती रही और हमें खबर ही नहीं। अम्मा भी की आंखें सुल्तान की बात पर हैरत से फैल गई। मुझे सच में पता नहीं था सुल्तान, मुझे लगा शायद राजदा इस बच्ची का ख्याल रखेगी। सुल्तान ने अफसोस से इन्हें देखा। मैंने इसके बाप से वादा किया था अम्मा भी कि मैं इसका ख्याल रखूंगा और मैं अपना वादा नहीं निभा पाया। सुल्तान ने करब से अपनी आंखें मूंदी और अम्मा भी ने इसे अफसोस से देखा। मुझे माफ़ कर दो बेटा। सुल्तान ने अपनी आंखें खोली तो अम्मा भी ने इसे पास आने का इशारा किया। क्या चाहते हो तुम सुल्तान? सुल्तान को पास बिठाकर अम्मा भी ने इसका हाथ थाम लिया। वो सर्वेंट क्वार्टर में नहीं रहेगी, इसकी जगह वो नहीं, इसकी जगह मेरे कमरे में, इसका मुकाम मेरे दिल में है। दूसरी बात तो सुल्तान चाहकर अपने लबों पे ना लाया और वो बाकी मुलाजमों की तरह काम नहीं करेगी। अम्मा भी वो मेरी जिम्मेदारी है।
अम्मा भी ने कुछ सोच कर इस बात में सर हिलाया। देखो सुल्तान, तुम जानते हो अगर मैं इसे यहाँ हवेली में रखूँगी तो फ़रीन इसके बारे में ज़रूर पूछेगी, और फिर जब तुम इसे ये बताओगे कि तुम इसे यहाँ लाए हो तो वो उस बच्ची को ऊपर भी सके हवेली में नहीं रहने देगी। तुम जानते हो तुम्हें और अनाबिया को लेकर कितनी एहसास है। सुल्तान ने बेबसी से इनकी जानिब देखा। प्लीज़ अम्मा भी कुछ करें प्लीज़। सुल्तान के चेहरे पर बेबसी को देखा अम्मा भी ने गहरा सांस लिया, कुछ सोचने लगी। आखिर एक तरकीब इनके जहन में आई। मैं इसे अपनी खादमा बनाकर रख सकती हूँ बेटा। फ़रीन से कह दूंगी कि इसे मैंने अपने कामों के लिए रखा है, इसलिए वो बस मेरे काम करेगी और मेरे पास ही सोया करेगी, ठीक है। अम्मी के पूछने पर सुल्तान ने कुछ देर सोचकर इस बात में सर हिलाया। अम्मा जो कह रही थी वो सबसे बेहतर था। ठीक है, मगर फिर तुम इसके हवाले से बेफिक्र हो जाओ, वादा करती हो अब खुद इसका अपना ख्याल रखूंगी। क्या नाम बताया था तुमने बच्ची का? नहीं, सुल्तान ने आहिस्ता से कहा। तो अम्मा भी मुस्कुराती। ठीक है, तुम इसे मेरे पास भेज देना, मैं इसे संभाल लूंगी। सुल्तान ने इस बात में सर हिलाया, कमरे से उठकर बाहर निकल गया। दिल था कि बगावत में उतर आया था। इसकी जगह यहाँ नहीं सुल्तान के पास है, वो उसकी बीवी, इसकी मलकियत है, लेकिन यह हक सुल्तान इसे फिलहाल देने से कासिर था और शायद कभी दे भी नहीं पाता। कनिज के माथे पर भी पट्टी करके आन ने मुस्कुराकर इसे देखा। अब दर्द तो नहीं हो रहा? आन के इस कदर मोहब्बत से बात करने पर कनिज ने नम आंखों से इसे देखा और हाँ में सर हिलाया। इसकी मासूमियत पे आन मुस्कुरा दी, उसका चेहरा हाथ में पकड़ा। ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। आन ने नरमी से इसका गाल सहलाया, जो थप्पड़ के निशान से लाल हो रहा था। आन को ये जानकर अफसोस हुआ कि इनकी छत के नीचे इस मासूम की शादी से लुक हुआ था। अगर ये बात अशमान को पता लग जाती तो इस मुलाजमा की जान ही निकाल देता जिससे इतनी जुर्रत की थी। नाम क्या है तुम्हारा? आन ने नरमी से इससे पूछा। कनिज फातिमा, अम्मा भी नूरी बुलाते थे। कनिज ने हल्का सा रोते हुए कहा, बहुत प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। कितने साल की हो तुम? कनिज ने अब नजर उठा के शफीस लड़की को देखा। 17 साल की। यहाँ किसके साथ आई थी नूरी? आन बस इसे बातों में लगाना चाहती थी ताकि इसका ध्यान तकलीफ से हट जाए। साईं जी के साथ, मैं इनकी मेट हूँ। मेट? आन के पूछने पर कनीज ने हाँ में सर हिलाया। उसके रुखसार गुलाबी हो गए। लेकिन मैं इनसे नाराज़ हूँ, पता है आपको बाजी, उन्होंने अब्बा से वादा किया था कि मेरा ख्याल रखेंगे और यहाँ का सारा काम मुझसे करवाया। पता है वो राशिदा बाजी सब लड़कियों का काम मुझसे करवाती थी और खुद सबके साथ बैठकर मुझ पर हंसती थी। भला कोई अपनी मेट से इतना काम करवाता है? सुल्तान जो अभी कमरे में दाखिल हुआ था इसकी बातें सुनकर अपनी जगह पर साकित हो गया। तो तुम सुल्तान भाई को सब बता देती। आन ने इसके चेहरे पर आई बालों की रट को इसके कान के पीछे करती हुई नरमी से कहा। बताने आई थी लेकिन साईं जी सो रहे थे। और फिर वो रात भर से याद करके कनीज की खूबसूरत आंखें फैल गई और गाल गुलाब की नानन सुर्ख हो गए। हाँ, बिल्कुल अच्छे नहीं है साईं जी, मैंने कुट्टी कर देनी है इनसे अब। कनीज ने मुंह बसोर कर कहा तो आन हंस दी। सुल्तान के हल्का से खांसने पर आन ने सुल्तान को देखा, उठकर कमरे से बाहर चली गई। जबकि कनीज सहम कर खड़ी हो गई। हाय और रब्बा, साईं जी ने सुन लिया तो नहीं? एक तो नूरी बूम बंद नहीं रहता तेरा। कनीज अपने हाथ मसलते हुए हल्का सा बड़बड़ाई और सुल्तान ख्वाब सी कैफियत में चलकर उसके पास आया। दिन की रोशनी में उसके ख्वाब से भी कहीं ज्यादा हसीन लग रही थी। रंग बहुत गहरा नहीं था बल्कि हल्का सा सांवला गुंदमी था। कमर तक आती चूटी नाजुक कंधे पे पड़ी थी। सुल्तान ने हाथ से इसकी ठोड़ी के नीचे रखकर चेहरा ऊपर किया तो नजर इसके चेहरे पे पड़ी जिसके तीखे निकोश और मासूम इस पर से नजर हटाना नामुमकिन कर देते थे। सच नाक में पहना लॉन्ग शायद इस रात सुल्तान देखकर नहीं पाया था, लेकिन अब इसकी चमक इसके मासूम चेहरे के हुस्न को बढ़ा रही थी। कटावदार हल्के गुलाबी और नाबी रंग के नाजुक होंठ को देखकर सुल्तान को लगा इसके गले में कांटे उग गए हैं। दिल था कि फिर से इन लबों को अपनी शिद्दत से चूर करने के लिए बगावत पर उतर आया था। बहुत जुल्म हुआ ना तुम पर, मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, तुमसे गाफिल रहा। सुल्तान के ऐसे कहने पर कनीज का चेहरा फूल गया, जैसे कुछ कहे बगैर ही अपनी नाराजगी का इजहार करना चाह रही हो। मुझे माफ कर। नहीं साईं जी। कनीज ने फौरन अपनी नजर उठाकर सुल्तान को देखा और इन आंखों को देखते ही सुल्तान फिर से खुद को भूल गया और गहरी सांस पलकों में लिपटे, बड़ी बड़ी सी आंखों में जिनमें लगता था कुदरत ने गहरा का काजल लगा कर भेजा है। सुल्तान फिर से मदहोश हो गया। सुल्तान की पकड़ इसकी थोड़ी पर मजबूत हो गई। वो लड़की उसका इस कदर इम्तिहान लेती थी। शौहर माफी मांगे तो गुनाह मिलता है, मुझे गुनाहगार न बनाए साईं जी, मुझे दोज़ख में नहीं चलना। करनी से कह रही थी लेकिन इसकी नजरों के से ऐसे निकलता, इसकी बात को समझता ना। अपनी नजरें झुका और सुल्तान के हुक्म से आंखें फैल कर इस मजीद खूबसूरत हो गई। जी जी साईं। सुल्तान से अपनी आंखें मेज गया। इसके चेहरे पर वो शराब देखकर कनीज सहम गया। इसे लगा सुल्तान इस पर गुस्सा आ रहा है। अपनी आंखों झुकाओ लड़की और हमेशा मुझसे नजर झुका कर बात करना, समझी? कनीज ने फौरन अपनी पलकें झुका लिया और इस बात में सर हिलाया। तुम आज से मेरी दादी के पास रहोगी, इनका ख्याल रखोगी और इन्हीं के कमरे में सोया करोगी। कनीज ने फिर से अच्छी बीवी की तरह हाँ में सर हिलाया। अगर इनके अलावा कोई भी कोई काम कहे तो तुम मना कर दोगी, उससे कहोगे तुम अम्मा भी के सिवा किसी का काम नहीं करोगी, ये मेरा हुक्म है। सुल्तान की बात पर कनीज ने नजर उठाए बगैर हाँ में सर हिलाया। जो हुक्म साईं जी। कनीज के आस्था कहने पर सुल्तान ने एक नज़र इसके नाजुक वजूद को देखा तो अंदाजा हुआ इसके कपड़े इसके नाजुक वजूद के लिए बहुत बड़े थे। ये कपड़े कहाँ से लिए तुमने? राजदा बाजी ने दिए थे साईं जी, इनके कपड़े हैं। कनीज ने नजर उठाए बगैर कहा और सुल्तान फिर से शर्मिंदगी के बोझ तले दब गया। वो कैसे
کیسے ان سے بالکل فراموش رہا تھا۔ ٹھیک ہے جاؤ اب یہاں سے، سلطان نے اس کی ٹوری کو چھوڑ کر کہا تو کنیز فوراً وہاں سے چلی گئی، اور سلطان نے اس بات سے اپنے ہاتھ بالوں پہ پھیرے۔ زندگی اس کے لیے بہت مشکل، بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، نہ جانے یہ اس کی کس گناہ کی سزا تھی کہ اپنی جس بیوی کو اپنانے کے لیے وہ تڑپ رہا تھا، وہ چاہ کر بھی اپنا نہیں سکتا تھا، اور یہ زندگی کا سب سے بڑا المیہ تھا۔